Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you are all fine. Students, now our next lecture is about the models. Like what are the models? What is the use of model? And how model is used in the English grammar. First of all, before going that what is the use and what is the role of models in the English grammar, we have to know about the definition that what is model, what this word means. So, first of all, we go through the definition. This definition indicates that this model is a verb. It is a kind of a verb. Verb means an action that combines with another verb to indicate the mood or the tense. So, in this definition, what we conclude that these models or such models are the type of, you can say, a type of verbs. These are the actions that combine with another verb. So there are two verbs. One verb that combine with another verb to indicate the mood or the tense. So इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक्शन देखते हैं, कोई भी एक्शन जो इंडिकेट करता है कि कौन से टेंस में हम इवन we are in the past, present or the future. So it indicates the mood or the tense that which time period is going now. So models क्या होते हैं? It is an action. A model expresses the necessity, uncertainty, ability and permissions. So what is the use of model? What is the role of model is that a model expresses the necessity, that what is necessary for this time period, what is uncertain for this time period, and what is the ability that a person who is able to do this. So this type of ability is included in the model. Or permission. So if we can give permission to somebody, so such type of permission is also included in the model. So definition से हमें क्या पता चला कि ये actually action होता है. Action होता है which indicates your tenses, which indicates the time period. तो आपको वो बताता है कि what is the necessity, क्या इस time period के लिए क्या जरूरी है, क्या कुछ uncertain मतलब कि ये according to situation नहीं है. किसी की एबिलिटी को शो करना भी मॉडल्स में आ जाता है एंड किसी को परमिशन कंडीशन देना भी इस मॉडल में आ जाता है. So this is the definition of the model actually. And what are the models? These 10 models are actually the main models of the English grammar. Number 1 is the can, could, may, might, must, ought, shall, should, will, would. So these are the 10 models which are generally used in the English grammar. And you can say that these models are the main base of the English grammar. That these are the some actions that we used in such a time period in which we indicate the mood and which indicates the time period of the situation. Let's explain them. So, number 1 is can. Can in the present models. Keep in mind student कि जब भी हम मॉडल्स को एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन तो इसमें हम मॉडल की टाइम पीरियड को इंडिकेट करेंगे. फॉर एग्जांपल if can is used in the present time period, so what is the use of this? So if can is in the present model, so its use is ability to do something in the present. So can यूज होगा प्रेजेंट मॉडल में कि आपकी एबिलिटी क्या है इस टाइम पे नाउ, यानी कि प्रेजेंट कंडीशंस में व्हाट इज योर एबिलिटी. फॉर एग्जांपल आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, ही कैन लर्न द लेसन, यानी कि वो प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी जो एबिलिटी को शो करना होता है, दिस इज योर कैन एबिलिटी. फॉर एग्जांपल आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अभी इंग्लिश बोल सकता हूँ, इट्स मीन योर एबिलिटी टू स्पीक इन इंग्लिश इन द प्रेजेंट time. Can is also used to give permissions to do something in the present. First इसका यूज था कि आपकी एबिलिटी को शो करना. सेकेंड कैन का प्रेजेंट मॉडल में यूज आ जाएगा कि परमिशन, जब आप किसी को परमिशन देते हो या परमिशन अलाउ करते हो किसी को इन द प्रेजेंट सिचुएशन, तो वो भी कैन का यूज सेकेंड यूज हो जाता है. कैन आई गो टू सिनेमा, तो आप परमिशन देना to something in the present is also included in the use of can. So number 3 is request.
So the third use of can in the present model is request. When you requested someone and when you requested to somebody about something, so it is also included in can. Can you wait a moment please? So number one आपने use the ability को शो करना, नंबर सेकंड परमिशन, एंड थर्ड यूज इज द रिक्वेस्ट. जब भी आप कोई रिक्वेस्ट करते हो कुछ भी करते हो तो उसमें आपका कैन यूज होता है प्रेजेंट मॉडल में. Number third use of can is the offer. When you ask for something, I can lend you my car till tomorrow. So offer is also included in the use of can. Number fifth use of can is the suggestion. When you give suggestion, when you give the remedy, when you give the some point or the reasons. So these are all included in the can. Can we visit grandma at the weekend? So it is a suggestion which is also included in the can. Number 6 is the possibility, that isn't it possible or not. So possibility is also included in the use of can. It can get very hot in the Arizona. So possibility show karna, it is also included in the can. Now, so student, the number one model is can. Can is always used in the present situation. कैन को हम कभी भी पास्ट टेंस में या पास्ट मोड में या फ्यूचर मोड में यूज नहीं करते. हम कैन को हमेशा प्रेजेंट मोड में यूज करते हैं. और उसके यूज क्या होते हैं? देयर आर 6 यूजेस ऑफ कैन. नंबर 1 इज द एबिलिटी, नंबर 2 इज द पॉसिबिलिटी, नंबर 3 इज योर permission, 4 suggestion, and number 5th is offer, and number 6 is the request. So these are the use of can. So our next model is could. Keep in mind, can is used in the present model but could is used as the past. जैसे हम form of verbs देखते हैं, see होता है in the present में, लेकिन वो saw बन जाता है in the past में. तो same is the case with can. Can जो होता है वो present में हम use करते हैं, लेकिन उसका could past model हो जाता है. ठीक है, ये हमेशा हम past में करते हैं. इसका mode, इसका tense हमेशा past में होता है. तो इसके भी कुछ यूजेस है. व्हाट इज द यूज? नंबर 1 यूज इज ability to do something in the past. कैन में हमारी थी ability to do something in the present, बट could में क्या है? हमारी ability past में चली गई. दिस इज द डिफरेंस. सो आपको यहाँ से डिफरेंस भी पता चलता रहेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैन एंड could. उधर सारा प्रेजेंट में था, इधर सारा पास्ट में आ जाएगा. आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं बोल सकता हूँ, यानी कि मुझे ऑलरेडी इंग्लिश आती है. इन द पास्ट सिचुएशन में आपकी जो एबिलिटी होती है वो कोड में यूज होती है. नंबर सेकंड यूज इज द परमिशन टू डू समथिंग इन द पास्ट. सेम उसके सारे यूज आपके कैन वाले हैं बट इन द पास्ट में चले जाएंगे. आई कुड गो टू द सिनेमा, यानी कि ये पास्ट के बाद हो गई है. ठीक है. व्हाट इज द थर्ड यूज? पोलाइट क्वेश्चंस. उसमें हम रिक्वेस्ट करते थे. इसमें हम क्वेश्चन, कुड आई गो टू द सिनेमा प्लीज. Question based is also included in the use of could. तो जितने भी क्वेश्चन बेस्ड होते हैं पोलाइट वे में, उधर भी रिक्वेस्ट इन द फॉर्म में, इधर लेकिन पोलाइट क्वेश्चन फॉर्म में हो जाती है. उधर रिक्वेस्टेड फॉर्म में हो जाती है, इधर क्वेश्चन फॉर्म में हो जाती है. नंबर 4 इज द पोलाइट रिक्वेस्ट. यस, ये आ गया. कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज. सो क्वाइट रिक्वेस्ट, क्वाइट ऑफ सॉरी पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट ऑफर जितनी भी होती है वो खुद में पास्ट में यूज होती है, नॉट इन द प्रेजेंट. पोलाइट ऑफर, यू कैन से दैट आई कुड लेंड यू माई कार टिल टुमारो. सो इसमें सारी पोलाइट ऑफर, पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट परमिशन सब कुछ इसमें इंक्लूड होगी. व्हाट इज द पोलाइट सजेशन? सो एवरीथिंग which is a use of the can is also used in the could but in the past. What is the difference between both? द टाइम पीरियड. कैन जो है वो हम प्रेजेंट में लगाते हैं, लेकिन जो हम कुड है वो हम हमेशा पास्ट में लगाएंगे. कुड वी विजिट ग्रैंडमा एट द वीकेंड. आपने नोट किया होगा कि जितने भी हमारे यूज ऑफ कुड है वो हमेशा क्वेश्चन बेस्ड हैं. क्वेश्चन बेस्ड है यानी कि इनके क्वेश्चन ऑफ एंड पे यूज होता है, क्योंकि ये पास्ट की बात हो जाती है. इसमें पोलाइट सजेशन आ जाती है, क्वेश्चन आ जाते हैं. तो जितने में ये सारी चीज़ें यूज होंगी वो कुड में यूज होगा. So what is the difference between can and could? It is related to the past and the present tense. So what is next? What is the next possibility?
possibility, it could get very hot in Montana. यानी कि इसमें भी possibility आ जाती है, but this possibility is related to past. So this is the use. This is the 7 uses of the code. So these are your second model. So what comes the third model is the may. May student use be in the present and the future. So our third model is the may. may को आप present form में, present tense में भी use कर सकते हो, आप इसको future में भी use कर सकते हो, फ्यूचर में भी आप यूज कर सकते हो. सो बोथ द टेंसेस आर इंक्लूडेड इन द मे. इसकी फर्स्ट, इसके भी यूज है. फर्स्ट इसका पॉसिबिलिटी होती है इट मे रेन टुडे, वो हो भी सकती है, लेकिन आप ये प्रेजेंट का भी बता रहे हो कि आज रेन हो सकती है, लेकिन आप फ्यूचर की इंडिकेशन भी दे रहे हो कि इट मे बी पॉसिबल टू रेन टुडे. सो मे इज यूज्ड इन both the sentences, present, future, not in the past. So what is the next use? It is the permissions to do something in the present. May I go to cinema? This is related to same as can. Can भी हमारा present mode में था, लेकिन what is the difference between can and could? जब आप कहते हो कि ये इसके सारे जो use हैं वो can के use होंगे, लेकिन आप कहते हो then how we know that what is the difference between may and can? So the difference is that जो can होता है वो आप only प्रेजेंट मोड के लिए लगा सकते हो, आप फ्यूचर में नहीं यूज कर सकते हो. लेकिन मे आप फ्यूचर में भी यूज कर सकते हो, प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हो. बाकी सारे यूज जो आपके कैन वाले थे वो मे में रिपीट होंगे. फॉर एग्जाम्पल, परमिशंस टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट, मे आई गो टू द सिनेमा. और थर्ड इज द पॉसिबिलिटी, सॉरी, so same use of may is same as the use of can. So what comes the next is might. Keep in mind, might is also used in the present and the future models too, but the difference is the possibility. So might is used also for the possibility it might rain today. बट इसमें क्या होता है, इसमें आपको सिचुएशन देखनी पड़ती है. ठीक है, यानी कि इसमें आपको डाउट होता है, आपका थोड़ी सी हेजिटेशन होती है इसमें. आप ये नहीं कह सकते जैसे आप मे में कहते थे इट मे रेन टुडे, इसमें आप कहते थे, आप इंटरप्रिटेशन देते थे अपनी. लेकिन माइट में आपकी थोड़ी हेजिटेशन होती है कि मे इट बी रेन टुडे और नॉट, माइट इट रेन टुडे और नॉट. यानी कि इसमें होती पॉसिबिलिटी है, इंटरप्रिटेशन भी होती है, लेकिन आपको थोड़ा सा डाउट होता है, थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, और इट माइट be or it might not. So something like that situation. So the use of might is also possibility. It is also used in the present and future, not in the past. So what is the second use? Is the hesitant offer. So hesitant offer होते हैं, यानी कि आप क्वेश्चन करते हो, आप रिक्वेस्ट करते हो, लेकिन इन द हेजिटेंट फॉर्म में. माइट आई हेल्प यू, यानी कि आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हो, आप क्वेश्चन भी कर रहे हो, लेकिन इन द हेजिटेंट फॉर्म. So might is used same as the may, but a little bit difference is related to the hesitant. So these are the two use of the might. Number one is the possibility, and the number two is the hesitant offer. So what comes the next is the must. हमारा ये फिफ्थ मॉडल है विच इज मस्ट. ये भी हमेशा प्रेजेंट मॉडल होता है, इसमें न तो कोई पास्ट मॉडल होता है ना फ्यूचर. ठीक है, अब मस्ट क्या होता है? इट इज अ फोर्स और द नेसेसिटी. या फिर फोर्स होता है कि ये काम होना ही होना. नेसेसिटी होती है, इट इज अ कंपल्सरी फॉर यू, इट इज अ फोर्स, इट इज अ स्पार्क. यू कैन से दैट इट इज समथिंग लाइक एन एनर्जेटिक मॉडल. तो कहते हैं ना एनर्जेटिक मॉडल है कि आपने काम करना ही करना है. देयर इज नो, यू कैन से दैट लेम एक्सक्यूज, आई मस्ट गो टू द सुपर मार्केट टुडे, यानी कि नेसेसिटी है, आपका कंपल्सरी है जाना. So must, what is the use of must is the force or the necessity. Number second is same as the possibility. Yeah, इसमें भी possibility आ जाती है, पर in the present situation. You must be tired. आप थक सकते हो. Possibility है कि आप काम करोगे या कुछ भी करोगे तो you must be tired. So इसमें भी possibility आ जाती है, लेकिन ना तो past की आती है कोई possibility, ना future की, only in the present model. Number third is the advice and the recommendations. So
इट इज समथिंग रिलेटेड टू द सजेशन। ये सजेशन में ही आ जाता है, लेकिन इसमें एडवाइस होती है, आपकी रिकमेंडेशन होती है। व्हाट यू हैव टू डू, यू मस्ट सी द न्यू फिल्म विद ब्रैड पिट। सो इसमें आपकी एडवाइस होती है, मस्ट यानी कि आपने वो काम नेसेसरी हो जाता है आपके लिए जब आपको एडवाइस कर दी जाती है, आपको रिकमेंडेशन दे दी जाती है, तो यू हैव टू डू इट। So this is the third use of the modal must. So what comes the next modal? Our next modal is will. Will is our next modal. So as you will studied in the future tense, will and shall, हमने will and shall का यूज किया था, which is used in helping verb। वहाँ पे हमारा has an helping verb यूज हो रही है। लेकिन एज अ मॉडल अगर देखा जाए, इंग्लिश ग्रामर में देखा जाए, व्हाट इज द यूज ऑफ विल, तो हम जब भी कोई हमारी विश होती है या रिक्वेस्ट होती है, डिमांड होती है, या कोई भी ऑर्डर होता है, तो इन चारों सिचुएशन में हम विल यूज करते हैं। यानी कि आप कोई विश करते हो या किसी से रिक्वेस्ट करते हो या फिर कोई भी डिमांड होती है, तो आप विल यूज करते हो। इट इज ऑल्सो यूज एन हेल्पिंग वर्ब, जैसे हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। लेकिन इन चारों चीज़ों के लिए भी आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। विल इज ऑल्सो योर मॉडल। बट विश, रिक्वेस्ट, डिमांड, ऑर्डर डज नॉट इंडिकेट द टाइम पीरियड। विल हमें यानी कि हमारी कोई भी विश हमें टाइम पीरियड नहीं शो करती, हमारी रिक्वेस्ट टाइम पीरियड नहीं शो करती, हमारी डिमांड टाइम पीरियड, ये वेरीज करती है, हमारी टाइम टू टाइम वेरीज करती है। आज मेरी डिमांड कुछ है, कल मेरी डिमांड कुछ होगी, तो इसमें हमें टेंस का, हमें मोड का नहीं पता होता है। सो देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ एनी टेंस इन दिस मॉडल। सो फॉर एग्जांपल, विल यू प्लीज शट द डोर, दिस इज योर रिक्वेस्ट और इट मे बी योर ऑर्डर। सो कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो तो आप विल का यूज करते हैं। Yes, what is the second use of will is the prediction and assumptions. कुछ भी प्रिडिक्शन होती है, आपकी फ्यूचर प्रिडिक्शन हो सकती है, आपकी पास्ट प्रिडिक्शन हो सकती है, आपकी प्रेजेंट प्रिडिक्शन भी हो सकती है, आपकी असम्पशन हो सकती है कि आज ये हो सकता है, पास्ट में हो सकता था, एंड फ्यूचर में हो सकता था, आपको नहीं कंफर्म, क्योंकि आपको विल में टाइम पीरियड का नहीं कंफर्म। सो जहाँ पे कोई प्रिडिक्शन या असम्पशन होती है तो वहाँ पे हम विल का यूज करते हैं। आई थिंक इट विल रेन ऑन फ्राइडे, देखिए आई विल, इट विल रेन, ये आपकी प्रेडिक्शन या आपकी असम्पशन है, ये कोई टाइम पीरियड नहीं बता रही है, कोई नहीं बता रही कि ये पास्ट का फ्राइडे है या ऑन कमिंग फ्राइडे है या आज वाला फ्राइडे है। सो इट्स ओनली इंडिकेट द प्रेडिक्शन और द असम्पशन। The third use of the will is the promise. Whenever you have promised to somebody or someone, तो आप कभी भी कोई प्रॉमिस करो तो भी आप will का यूज करते हो। आई विल स्टॉप स्मोकिंग, हमेशा ये स्टूडेंट्स करते हैं, स्पेशली फॉर बॉयज, के प्रॉमिस करते हैं बट दे विल ब्रेक। यस, दे विल ब्रेक, ये भी प्रॉमिस है, ये भी आपकी होता है, लेकिन लेट इट गो। प्रॉमिस का यूज जहाँ भी आता है आप विल यूज करते हैं। आई विल स्टॉप स्मोकिंग, इट इज एन एग्जांपल। यस, व्हाट इज द फोर्थ यूज ऑफ द विल इज द स्पॉन्टेनियस डिसीजन। स्पॉन्टेनियस मीन एट द सेम टाइम, कि अभी एकदम आपका कोई डिसीजन चेंज हो जाना, यानी एट द स्पॉट आपका डिसीजन आ जाना, अचानक से डिसीजन को लेना, तो इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द यूज ऑफ विल। कैन somebody drive me to the station? Yes, I will। जब हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेते हैं, कोई भी किसी से भी कुछ कहना हो तो हम कहते थे यस आई विल, मैं करूँगा या मैं करूँगी, कुछ भी ऐसा होता है, तो स्पॉन्टेनियस डिसीजन में भी हम विल का यूज करते हैं। Yes, next comes the use of habits. आपकी habits, आपकी hobbies, these are included in. So habits and hobbies are included also in the use of will. She is strange. She will sit for hours without talking. So आपकी कोई habit होती है, the habit of reading, habit of traveling, habit of eating. So such type of strange activities, such as a strange habits, are also included in the use of will. So yes, you will notice that the possibilities are included in the main three type of models will made, but the possibility in the will is 100% possibility, and maybe 80% possibilities you can say by 20%, because it is the type hesitation। यहाँ पे आप hesitation show करते हो, यहाँ पे आपकी confusion होती है कि आप fully possible नहीं होते। यहाँ पे main में आप
होते हो, आपकी कंसंट्रेशन होती है, आपकी इंटरप्रिटेशन पॉसिबिलिटी भी सेम होती है, लेकिन 80% होती है, लेकिन विल में आपकी पॉसिबिलिटी 100% होती है कि यू कैन डू दिस, yes you can do this. So this is the, sometimes you can say that the graph related to the percentage of possibilities. So जब हम sentences के type पढ़ाई तो मैंने कहा तो there are some positive sentences, there are some negative sentences, so there is always a contradiction. जैसे कि हर चीज़ कोई पॉजिटिव होती है तो उसका नेगेटिव होना जरूरी होता है. यू कैन से दैट बाइनरी ऑपोजिशन होती है, यस है तो नो होता है, ट्रू है तो फॉल्स होता है, लेफ्ट है तो राइट होता है. सो इसी तरह मॉडल्स में भी जब आप मॉडल्स पढ़ते हैं तो उनकी भी नेगेशन होती है. जैसे आपने मस्ट मॉडल पढ़ा तो उसकी भी नेगेशन मस्ट नॉट होगी, आपने मे पढ़ा तो उसकी भी नेगेशन मे नॉट होगी. and how these negations are used in our grammar, English grammar. तो वो ये कैसे कहते हैं कि must not and may not आपका present और future model है, ठीक है. इसमें दो टाइम पीरियड हैं, present and future model. So what is the use of both are the prohibitions. जब आप किसी चीज से रोकते हो, किसी चीज से मना करते हो, प्रोहिबिट करते हो किसी चीज से, तो हम ये कहते हैं यू मस्ट नॉट डू दिस, यू मे नॉट डू दिस. सो इन दोनों का यूज में हम प्रोहिबिशन शो करते हैं. यू मस्ट नॉट वर्क ऑन डैड्स कंप्यूटर, या आप भी कह सकते हैं यू मे नॉट वर्क ऑन डैड्स कंप्यूटर. सो बोथ द पॉसिबिलिटी, बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट जिसमें आप प्रोहिबिशन शो करते हो, लेकिन कीप इन माइंड कि आप सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज करते हैं, नॉट इन दी पास्ट. एक होती है नीड नॉट. तो नीड की होती है ना, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे रिक्वेस्ट करते हो, विश करते हो, तो आपकी कोई नीड होती है. इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू सम एक्शन, वर्ब्स. नीड भी आपकी, नीड क्या एक्चुअली ये वर्ब है, आपकी एक्शन है, लेकिन इसकी भी नेगेशन होती है. इसमें भी आप प्रेजेंट और फ्यूचर, इसमें भी आपके दो टाइप ऑफ टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट एंड फ्यूचर मॉडल होते हैं, ठीक है. लेकिन इसमें क्या होता है, नीड नॉट से आपको पता चल रहा है कि इट इज़ नॉट नेसेसिटी, आपके लिए ज़रूरी नहीं है या आपके लिए कंपल्सरी नहीं है. तो कॉमन सेंस की बात है कि ये नीड नॉट आता है, तो इसका मतलब इट इज़ नॉट यूज, इट इज़ नॉट नेसेसरी. तो ये भी एक मॉडल होता नहीं है, लेकिन नेगेशन फॉर्म में अगर कभी भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक मॉडल की फॉर्म है, नेगेशन फॉर्म ऑफ मॉडल है, ठीक है. इसकी एग्जाम्पल क्या है, आई नीड नॉट गो टू द सुपर मार्केट, वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट टुनाइट. सो जरूर इसका मतलब है कि आपको नेसेसरी नहीं है कि आप सुपर मार्केट जाओ, बट यू हैव टू गो रेस्टोरेंट टुनाइट. So such type of negation is also used as a models. Yes, and next model is would. जिसका हमने will पढ़ा था, तो आप ये समझ लो will उसकी प्रेजेंट फॉर्म कर लो. लेकिन मैंने उसमें बताया था कि will में कोई भी टेंस नहीं होता, ना प्रेजेंट ना फ्यूचर ना पास्ट. लेकिन समझाने के लिए आपको कह रही हूँ, जैसे हमने कैन को कहा था ये प्रेजेंट है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है, खुद उसकी सेकेंड फॉर्म यानी वो पास्ट बन जाती है. इसी तरह आप will को एज अ प्रेजेंट ले लो और वुड को उसका पास्ट कर लो, ठीक है. यानी कि वुड में भी आपकी विश और रिक्वेस्ट होगी, लेकिन इसमें आपकी कोई डिमांड, आपका ऑर्डर नहीं होता जिस तरह विल में होता था. तो उसमें चार चीज़ होती है, इसमें सिर्फ आप विश कर सकते हो, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप इसमें ऑर्डर नहीं दे सकते, आप इसमें कोई डिमांड नहीं कर सकते. तो ये वुड आपका ऐसे ही है जैसे आप माइट में हेजिटेशन शो करते थे, इस तरह आप वुड में भी थोड़ी सी हेजिटेशन शो करते हो. विश करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, ऑर्डर नहीं करते, आप डिमांड नहीं करते. तो वुड यू शट द डोर प्लीज, देखो कितना पोलाइट रिक्वेस्ट है, पोलाइट विश है, तो इसमें आप कोई ऑर्डर नहीं करते, थोड़ी सी ये हेजिटेंट ऑफर होती है, ठीक है. लाइक माइट, तो वुड इज सेम. यस, हैबिट्स इन द पास्ट, जिसका मैंने बताया कि विल को आप प्रेजेंट ले लो, तो इस तरह आप वुड को आप पास्ट में लेते हो. जैसे हम कैन को हम प्रेजेंट में लेते थे, वुड को हम पास्ट में ले जाते थे, इस तरह आप वुड को भी पास्ट में ले जाओ कि जो हैबिट्स, जो हॉबीज आपकी पास्ट में थी, these are included in the use of would. Sometimes he could bring me some flowers. तो ये पास्ट की बात है, he would, ठीक है. तो ये आप ऐसे समझ लो दैट इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल की ये पास्ट फॉर्म है. सो जितनी भी हैबिट्स आपकी पास्ट में थी वो आपके वुड के यूज में आई. यस, ये देखिए, हैड यूज एज पास्ट फॉर्म ऑफ विल. अभी मैंने बताया जिस तरह आप विल को एज अ प्रेजेंट ले लेते हो, तो उसकी विल की जो पास्ट फॉर्म ऑफ लोगे वो वुड हो. ही टोल्ड मी यस्टरडे दैट ही विल कॉल मी, ठीक है.
सेम वही है आपकी विल को आप विल की आप पास्ट फॉर्म को वुड एज अ वुड भी ले सकते हैं। यस, वर्ड कम्स इन नेक्स्ट ओ टू। ओ टू को आप शुड टू भी कह सकते हो, शुड, लेकिन कहते हैं ना कि जिस तरह आपकी ओल्ड इंग्लिश ग्रामर थी उसमें आप शुड का वर्ड यूज करते थे, अब जो है आप ओट यूज करते हो, शुड भी यूज करते हैं, लेकिन जो आप कह सकते हो कि आपकी जो एडवांसिंग ग्रामर आई है जिसमें आप ओट का वर्ड यूज करते हो, ओट टू। ये जैसा कहते हैं ना यू शुड टू डू दिस, यानी कि हम किसी को एडवाइस कर रहे होते तो ओट, शुड एंड ओट आपकी सिनोनिम में होते हैं, लेकिन वो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में थी, ये न्यू इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। तो शुड टू आपका एडवाइस शो करता है कि you ought to drive carefully in bad weather, जैसे हम कहते थे you should to drive, आपको करना चाहिए, तो एडवाइस जब भी हम देंगे तो हम उसमें ought to लगाएंगे, ought to drive carefully in the bad weather. So what is the next use obligation? जब हमें कोई obligation लगानी हो, ठीक है, यानी कि जब आपने कोई restrictions लगानी हो या आपने कोई कहना हो कि ये आपने काम मस्ट करना है, ऑब्लिगेशंस की कंडीशंस लगा देते हो। यू ought to switch off the light when you leave the room, कि आपने लाइट ऑफ करनी है whenever you leave the room। तो ये आपने ऑब्लिगेशन लगा दी या फिर इसके लिए कंपल्सरी कर दिया या आपने कंडीशन लगा दी कि जब भी आप रूम से बाहर निकलो यू शुड और यू ought to switch off the light। Yes, shall is also immoral in the English grammar। इसमें आपको shall को पता है, जिस तरह आप will यूज करते थे इन द फ्यूचर एज एन हेल्पिंग वर्ब आपने यूज किया था, तो shall भी आपका moral वर्ब। तो आप कैसे यूज करते हो, shall भी सजेशन यूज करते हैं, तो सजेशन यूज करते हो, shall I carry your bag, तो आप उसको सजेशन दे रहे हो कि क्या मैं कर सकता हूँ, so to give someone suggestions, तो वो also included in the use of shall। तो शेल का यूज आई के साथ, बी के साथ और अदर प्रोनाउन के साथ कैसे यूज हो रहा है वो मैंने आपको फ्यूचर टेंस में डिटेल में बताया था। सो सेम शुड, जिसका मैंने बताया ओ टू को भी हम शुड कहते थे, उसमें भी हमने पढ़ा ओ टू में हम एडवाइस देते थे, तो मैंने कहा था कि ये दोनों सिनोनिम है, ओ टू आप यूज करो, ये शुड यूज करो, आपके दोनों सेंटेंसेस करेक्ट होंगे। सेम यू शुड ड्राइव केयरफुली इन द बैड वेदर भी ठीक था, एंड यू ought टू ड्राइव केयरफुली इन द बैड वेदर भी ठीक है, लेकिन शुड हम यूज क्यों करते हैं, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ shall। जिस तरह will था उसकी पास्ट फॉर्म would थी, जिस तरह can था उसकी पास्ट फॉर्म could थी, इसी तरह shall है उसकी पास्ट फॉर्म हम should यूज करेंगे। So it is same as the O2 in which we give the advice। सेकेंड में शुड में भी आप ऑब्लिगेशंस लगाते हो, यू शुड स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम, सो सेम ऑब्लिगेशन आपकी सेम वही होती है जैसे आप O2 में लगाते हो, ठीक है, O2 लगाते हो, तो दे आर द सिनोनिम, O2 and should is the synonym। Yes, there are some other models, have to and has to, ये हमेशा यूज होते हैं, तो हमें नहीं समझ आता कि हैव टू कहाँ लगाना है, हैज टू कहाँ लगाना है, तो ये भी मॉडल में यूज होता है, हालांकि ये हेल्पिंग वर्ब्स, सो मॉडल्स आर आल्सो वर्ब्स, सो द डिफरेंस इज द यूज, यानी इनके यूज का डिफरेंस है, सारे ये वर्ब्स होते हैं, दीज आर द एक्शन वर्ब्स, लेकिन ये मॉडल्स कब बन जाते हैं, जब इनके रोल चेंज हो जाते हैं, जब इनके मूड, इनके टेंसेस चेंज हो जाते हैं। सो हैज टू एंड हैव टू यूज टू शो द कंपल्सन, यानी कि कंपल्सरी हो जाता है, जब आपके लिए नेसेसरी हो जाता है, तो हम इन मॉडल्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू वेक अप एवरी मॉर्निंग, मुझे चाहिए, कंपल्सरी है। ही हैज टू परफॉर्म ऑन स्टेज फॉर हिज बर्थडे, आई हैड टू गो टू दिल्ली यस्टरडे। सो टेंसेस के अकॉर्डिंग लगाना है, जिस तरह आप हैड यूज करते हो, हैज यूज करते हो, हैव यूज करते हो, तो आपने टेंसेस देखना है कि ये प्रेजेंट है और प्रेजेंट में कौन सी प्रोनाउन यूज हो रही है, तो आपने टेंसेस जरूर देखना है। अगर आपका प्रेजेंट है तो आप हैव लगाओगे, प्रोनाउन को देखिए, आई है तो उसके साथ हैव लगेगा, आगे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग आपका प्रेजेंट है तो आप हैव लगाओगे। ये भी टू परफॉर्म ऑन स्टेज आपका
प्रेजेंट है लेकिन ही आ गया तो ही के साथ हैज लगाओगे। ये आपको मैंने यूज हैज और हैव के यूज टेंसेस में बताए थे। लेकिन आई हैड टू विद यस्टरडे टाइम पीरियड आ जाएगा तो वो आपका परफेक्ट में पास्ट में चला जाएगा, तो आप हैड टू लगाओगे। सो हैव टू, हैज टू, हैड टू, अब अकॉर्डिंग टू द टेंसेस लगाओगे। टेंसेस में देख के लगाओगे कि व्हाट इज द सिचुएशन, इधर ये पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आप हैज, हैव एंड हैड लगाओगे, ठीक है। लेकिन तीनों का फंक्शन यही है कि दे यूज टू शो द कंपल्सन शो कर, ठीक है। सो दीज आर सम, or you can say there are 10 models which are the main models. These are the main models. तो क्या क्या इनके यूज है, कहाँ का यूज होते हैं, जैसे कैन प्रेजेंट का था उसका पास्ट वुड बना, मे आपका प्रेजेंट का था उसका माइट बना, मस्ट ओट बना, उसका शेल शुड बना, विल वुड बना। तो इस तरह के आपके मेन 5 होते हैं, कैन, मे, मस्ट, शेल एंड विल। लेकिन उनके जब हम पास्ट फॉर्म के साथ बनाते हैं तो दे बिकम 10 मॉडल्स। तो ये आपके जो जनरल और स्पेसिफिक यू कैन से दैट जो इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स यूज होते हैं ये व्हाट इज दिस इज यूज, तो मैंने आपको यूज से बता दिया कि कहाँ कहाँ ये यूज होते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू द टाइम क्या होता है, और ये क्या शो करते हैं, आपका मूड शो। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू योर मॉडल्स। So if there is any confusion or ambiguity, you have to contact me at Moodle. So this is model and this is your 4th main lecture of your course, ADU course. So कोई भी ambiguity, कोई भी query हो तो आप मुझसे contact करें। Thank you so much. Allah.